right, happy Mother's Day once again to all the mothers as well as their children here. और आप सभी को मातृ दिवस मुबारक हो। We are thankful to God for the gift of mothers. और हम खुदा का शुक्र करते हैं माताओं के लिए। And therefore, I thought it will be appropriate for us to meditate today on the motherhood of God. और इसलिए मैंने सोचा कि ये अच्छा होगा यदि हम परमेश्वर के माता स्वरूप प्रेम के बारे में हम बातचीत करेंगे आज। See, we get most of our ideas about God from fathers and from fatherly figures. और हम ज़्यादातर परमेश्वर के बारे में जब सोचते हैं तो हम एक पिता और पिता जैसे स्वरूप में उसको सोचते हैं। And because our language is so limited, और क्योंकि हमारी भाषा बहुत सीमित है, we only think of God as the Father. हम परमेश्वर को केवल एक पिता स्वरूप देखते हैं। We call him our heavenly Father. और हम उसको अपना स्वर्गीय पिता भी कहकर पुकारते हैं। So we, think that God is only masculine. और इसलिए हम सोचते हैं कि परमेश्वर जो है वो केवल मैस्कुलिन है। And we don't think that he could also be feminine. और हम ये नहीं सोचते कि वो माता स्वरूप भी है। It has just been so ingrained in our culture to think of God only in the masculine figures and as heavenly Father only. और हमारी संस्कृति के द्वारा हमने परमेश्वर को केवल एक पिता स्वरूप ही देख लिया है। But today I thought on Mother's Day it will be appropriate to reflect on the motherly qualities of God. और इसलिए मैंने सोचा आज हम परमेश्वर के जो माँ स्वरूप जो उसका चरित्र है उसको भी देखेंगे आज। So when I say God calls herself a mother, don't raise your eyebrows and get angry. इसलिए यदि मैं परमेश्वर को एक माँ स्वरूप दर्शाना चाहता हूँ तो आप अपने गुस्से को मेरी ओर ना दिखाएं। It may be a radical idea to think of God calling herself a mother or himself a mother. I don't know how to really put it, whether God calls himself a mother or God calls herself a mother. इसलिए मुझे शब्दों में उसको प्रकट करना मुश्किल लगता है कि उसको कैसे बोलूं कि परमेश्वर अपने आप को पिता दिखाता है या अपने आप को माँ दिखाता है। It may be radical, but it is nothing new. हो सकता है ये कुछ नया लगे पर ये कुछ नया नहीं है। So hear me out. इसलिए आप मेरे को सुनें। We will look at some of the scriptures that portray to us the godly, that God being the mother or the motherly qualities, attributes of God in the scriptures. इसलिए आइए हम वचन के द्वारा देखें परमेश्वर कैसे दर्शाता है कि उसके अंदर माँ जैसा हृदय है। But before we go forward, I want to clarify पर इससे पहले कि हम आगे जाएं मैं ये साफ बताना चाहता हूँ that I believe according to the scriptures, कि मैं विश्वास करता हूँ वचन के अनुसार God has no gender. परमेश्वर का कोई लिंग नहीं। God is neither male nor female. और परमेश्वर ना तो नर है ना नारी है। Though we call him Heavenly Father, चाहे हम उसको स्वर्गीय पिता करके बुलाएं, the biblical God doesn't have a gender. लेकिन जो हमारा पवित्र शास्त्र के अनुसार जो पिता है उसका कोई लिंग नहीं। The Bible calls him spirit. God is spirit. वचन हमें सिखाता है परमेश्वर आत्मा है। And spirits do not have genders like you and me. और जो आत्मा है उसके अंदर कोई लिंग नहीं जैसे हम और आप में पाते हैं। Because he is a spiritual being, क्योंकि वो आत्मिक बीइंग है। he has created human beings as male and female. इसलिए उसने हमें नर और नारी करके बनाया। So instead of the creator, we, the creation, have genders. और इसलिए क्योंकि उसने रचा है उसकी रचना में हमारे अंदर लिंग पाए जाते हैं। But because he is the spirit, पर क्योंकि वो आत्मा है, because he is the creator, क्योंकि वो रचयिता है, because he is God, क्योंकि वो परमेश्वर है, he cannot be limited to just one gender, that is either male or female. तो हम उसको सीमित नहीं कर सकते
मनुष्य के नाते नर या नारी कहकर। So when God begins to describe himself and some of the attributes of God, तो इसलिए जब परमेश्वर अपने आप को एक अपना चरित्र को एक माता की तरह दिखाता है, he uses some of the languages that describes mothers. तो कुछ भाषा ऐसी इस्तेमाल होती है यहाँ पे जिसमें माँ को दर्शाया जाता है। So because when God begins to tell his creation how he is, what he calls himself, he says that I am like a mother. और जब परमेश्वर सिखाता है अपनी सृष्टि को कि वो कैसा है, तो वो अपने चरित्र में हमें दिखाता है जैसा एक माँ होती है। And isn't that interesting that this comparison that God makes, it is him alone who makes that comparison of himself with a mother. तो ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि परमेश्वर अपने आप को एक माँ स्वरूप हमको दर्शाता है। So we are like babies at his breast. तो हम जैसे उसकी छाती पे लगाए गए बच्चे हैं। We are like babies who are born by him. He carries us. Those are the kind of languages that we find in the scriptures. और ये भाषा जो प्यार की भाषा हम वचन में देखते हैं, उसमें देखते हैं परमेश्वर जो है हमें थामे रहता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को थामती है। The love and the care and the compassion. और माताएं जैसे प्यार करती हैं, ध्यान रखती हैं और उनको बहुत तरस आता है और प्यार आता है The अपने बच्चों के patience with which they take care of their children. ऊपर। उस धीरज के साथ जिसके साथ वो अपने बच्चों का देखभाल करती They है, all portray the nature of God. वो जो है परमेश्वर के स्वभाव को दिखाती हैं। So he is spirit and we are human beings, created human beings. और परमेश्वर ने उनको रचा है, वो उसकी रचना है। When we believe that God has created us in his own image and in his own likeness, जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, so God himself wants us to look at mothers and see that he is like a mother. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी माँओं को देखें और इस बात को महसूस करें कि वो माँ की तरह हमारे लिए है। So how is he like a mother? तो परमेश्वर कैसे एक माँ की तरह है? The way they serve their family, that they bring forth children into this world. ये उस तरह से है जैसे माँ बच्चों को जन्म देती है इस दुनिया में लाने के लिए। So they reflect God's nature. What could God be made of? और वो परमेश्वर के प्यार को दर्शाती है एक दर्पण की तरह कि परमेश्वर कैसा है। I don't think we would know God better and in a fuller sense unless God had created mother. और हम परमेश्वर के उस प्यार को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम परमेश्वर की सृष्टि जो माँ के रूप में है उसको ना देखें। So first of all, इसलिए पहली बात, God carries us like a mother in the scriptures. वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हमें माँ की तरह लेकर चलता है। In the way that they love us, जिस प्रकार से माँ हमें प्यार करती है, it portrays how God loves us. वो इस प्रकार को उसको दर्शाता है कैसे परमेश्वर हमें प्यार करता In the way they bring forth children, है। उस प्रकार से जिस प्रकार से वो बच्चों को जन्म देती हैं, God also borns his people, his chosen ones. उसी प्रकार से परमेश्वर जन्म देता है अपने चुने हुए बच्चों को। For example, in the book of Isaiah, chapter 42, उदाहरण के लिए हम देखेंगे वचन से यशाया उसका 42 अध्याय and verse 14 says, और उसकी 14 आयत में ये लिखा है, Now for a long time I have held my peace. बहुत काल से तो मैं चुप रहा I have kept still and restrained myself. और अपने आप को मौन साधे रहा। Now I will cry out like a woman in labor. I will gasp and pant. परंतु अब जच्चा के समान चिल्लाऊंगा, मैं हाँफ कर सांस भरूंगा। See, the Lord says, I cry. I am in travail like a woman in labor. और परमेश्वर कहता है मैं रोता हूँ उस माँ की तरह जो जच्चा जैसी पीड़ा सहती है। He says, I have been holding back this anger in me. परमेश्वर कह रहा है कि मैंने अपने गुस्से को थामे रखा, I मौन रहा। have held my peace. मैंने अपनी शांति को रोके I रखा, restrained myself, मैंने अपने आप को रोके रखा, but no more.
पर अब नहीं। I will pour out this. और मैं जो हूँ अब मैं इस बात को उंडेलूंगा। God says, my condition is like that of a woman, a mother, to be in pain. और मेरी अब दशा जो है एक माँ की तरह है जो जच्चा की पीड़ा को सह रही है। So, like a woman in pain, labor pain, और जैसे एक माता गर्भ के समय में पीड़ा में होती है, she sighs and she lets out her cry, her pain out, and this is the condition that God says, I am in. और जिस प्रकार से गर्भ के समय में पीड़ा महसूस करती है माँ, वैसी परमेश्वर कह रहा है मैं उस तरह का दर्द महसूस कर रहा हूँ। Like a woman who pants and breathes heavily in pain, उस जच्चा वाली माँ के लिए जो अपने आप को हाँफ कर इस दर्द को सह रही so है। my heartbeat is at a high moment and I'm panting and gasping. और परमेश्वर कहता है कि इस समय में उस तरह से अपने आप को दर्शाता कि मैं हाँफ रहा हूँ और मैं दर्द में हूँ, पीड़ा में हूँ। So he is about to give birth इसलिए अब वो जन्म देने वाला है। to his righteous anger. वो अपने धर्मी गुस्से को, अपने धर्मी क्रोध को अपने लोगों पर उंडेलने वाला है। Or maybe it is against the enemies of God's people. या हो सकता है वो अपने दुश्मनों के विरोध में उसको उंडेलेगा। God was holding his patience and God was restraining himself. और परमेश्वर जो है वो चुप रहा है कुछ समय से और अपने आप को मौन रखे रहा। But now he will pour out his anger upon the enemies of Israel, those who were troubling him. और अब जो है वो उस गुस्से को अपने लोगों के, चुने हुए लोगों, इस्राएल के विरोधियों के ऊपर उंडेलेगा। Now in Isaiah 46 and verse 3, और यदि हम आगे देखें यशाया उसके 46 अध्याय की 3री आयत there is है, another important verse. तो एक और ही मुख्य आयत है। Chapter 46 and verse 3. Anybody? यदि हम वचन में देखें यशाया 46 3री आयत, हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा। So God, imagine God picturing himself and Israel. You know, when we know about God and we know about God as Heavenly Father, but how does he describe himself? हम जानते हैं परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ कैसा बर्ताव किया, कैसे उनको लेकर चला, लेकिन वो कैसे अपने आप को समझाता है कि वो किस प्रकार का उसका चरित्र है। How he shows his faithfulness and patience to Israel. और कैसे परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता को और अपने धीरज को जो इस्राएल उसकी चुनी हुई कौम है उसके प्रति दर्शाता है। See, in contrast to what precedes before it, और उसकी तुलना में कि उससे पहले क्या हुआ, in Isaiah chapter 42 and 43, और यशाया 42 और 43 में, you know, the prophet was talking about the idols of Babylon. और जो यशाया भविष्यवक्ता है वो बेबीलोन के मूर्तियों के बारे में बात कर रहे They हैं। need to be carried. उनको जरूरत थी कि उनको उठा के चला जाए। They have legs, but they cannot walk. उन मूर्तियों के पैर तो है लेकिन वो चल नहीं सकते। They have ears, but they cannot hear. उनके पास कान है लेकिन वो सुन नहीं They have सकते। eyes, but they cannot see. उनके पास आंखें तो है लेकिन देख नहीं सकती। Their worshippers carry them wherever they want to take them. और उसके आराधक जो हैं वो अपने उन मूर्तियों को लेकर चलते हैं। But in contrast to that, लेकिन उसके विरोध में, विपरीत में, God यदि हम says to देखें, his people, परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, I carried you like a mother. मैं तुमको लिए चला एक माँ की तरह। Like a mother who carries a baby in her womb. जिस तरह से माँ अपने गर्भ में बच्चे को लेकर रहती है। Like a mother who takes care of the baby and puts when he or she is born. और वो उस माँ की तरह है जो अपने बच्चे को लेकर चलती है पैदा होने से पहले। And like a mother who carries her on her hip or in her lap or on her shoulders.
और उस माँ की तरह जो गर्भ के बाद बच्चे को अपनी गोदी में, अपनी पीठ पर या अपनी कमर पर रखकर चलती So है। Jehovah, Creator God says, इसलिए यहोवा परमेश्वर जो रचयिता परमेश्वर कहता my है, dear people, I have carried you like a woman. और मेरे प्रिय लोगों, मैंने तुमको एक माँ की तरह, एक नारी की तरह लेकर चला। Like a woman carries the baby in her womb, I have carried and cared for you. जैसे माँ अपने गर्भ में अपने आप को संभाल कर चलती है, वैसे मैंने तुमको अपने आप संभाल कर चला हुआ। And in these verses, God also compares himself to a nursing mother. और यहाँ पर परमेश्वर जो है अपने आप को एक ऐसी माँ जो दूध पिलाती है, जो उसका ध्यान रखती है, उसकी जरूरत को पूरा करती है, उस तरह से दर्शाया है। You have been born by me before your birth, carried from the womb. और मैं तुमको लेकर चला, जैसे गर्भ में माँ एक लेकर चलती है। In another version it says, और दूसरे अनुवाद में कहा गया, who have been carried since birth. और जो लेकर चले गए गर्भ से पहले। Like an infant, as soon as you are out of the womb, who cares for them? The mother. और जैसे कि एक बच्चा जिसका जन्म होता है, उसका ध्यान कौन रखता है? एक माँ। So God has been carrying and caring for the people of God, the chosen ones, like a mother. इसलिए परमेश्वर ने अपने चुने हुए को अपने साथ लेकर चला और उनका ध्यान रखता आया The है। word born here means, it denotes carrying. और यहाँ पे जो जन्म शब्द है वो है एक तरह से लेकर चलना अपने साथ, Supporting, उसको सपोर्ट करना, providing the basic necessities of a baby. और जो बच्चे की ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना। All of these things the fathers do not know how to do. और ये सब बातें जो पिता हैं उनको नहीं मालूम कैसे करनी है, But the mothers know because God has created them in such a way. पर माताएं जानती हैं क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें इस रीति से बनाया है। So when God compares himself to explains this to his people, and he uses the words like mother and womb and pain and labor pain. और इसलिए जब परमेश्वर लोगों को समझाता है कि वो कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, तो एक माँ की तरह दर्शाता है कि कैसे वो उनको गर्भ में रखकर, कैसे उनको पैदा होने के बाद आगे तक लेकर चलता है, उनका ध्यान रखता है। Further on, when I was reading the book of Genesis, और इसके आगे हम देखेंगे, जब मैं उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ रहा था, in Genesis chapter 1 और उत्पत्ति के पहले अध्याय में and verse 26 उसके 26 आयत में and verse 31, और उसके 31 आयत में the words used are made or make or create or created. तो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो बनाना या रचना, So that is used for God. और ये शब्द इस्तेमाल किए गए परमेश्वर के लिए। Let us make man in our image. जैसा लिखा है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता Or में the बनाएं। word is mankind or humanity in our image. और या तो उसको ऐसे भी कह सकते हैं, मानव जाति को अपने स्वरूप में बनाएं। So God created humanity in as male and female in his image. इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को नर और नारी कर कर बनाया अपने स्वरूप में। But later on in chapter 4, पर आगे चलकर उत्पत्ति के 4थे अध्याय में, when it was the term for Eve to give birth, जब समय आया कि हवा पुत्र जने, in chapter 4 of the book of Genesis and verse 1, if you would kindly read, यदि हम उत्पत्ति 4 उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। Yeah, that's good. So Eve uses the same word here that is described for God. और परमेश्वर के द्वारा जो शब्द दिया गया उसको हवा भी इस्तेमाल करती है। Somebody's put it like this in a more beautiful way. और किसी ने बड़ी सुंदर तरीके से ऐसा कहा है। Eve said, हवा ने कहा, God made man, परमेश्वर ने पुरुष को बनाया, and now with the help of God, और अब परमेश्वर की सहायता के द्वारा I have made a second man. मैंने अब दूसरा पुत्र दिया। I have made, I have born, I have given birth to, I have created another man.
और मैंने एक दूसरे बेटे को जन्म दिया है। And it is not in my own strength, but with the help of God have I given birth to Cain, another man. और उसने उसके शब्दों में उसने कहा, मैंने अपनी ताकत के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर की सहायता के द्वारा मैंने एक पुरुष पाया है। It is a play on the words in Hebrew. और ये एक इब्रानी भाषा के ऊपर जैसे प्ले किया गया। The word for Hebrew for Cain is kana और कैन का जो इब्रानी शब्द है वो है खाना or Cain, या खायन, which means I have acquired or I have created or I have produced. और जिसका अर्थ है मैंने बनाया या मैंने उसको जन्म दिया। So just as God has the power to create, और जैसे परमेश्वर के पास सामर्थ है रचने की, He has given that power and the abilities to the mother to produce and to create mankind and further this humanity. वही शक्ति उसने माँ को दी है ताकि वो जन्म के द्वारा नया जीवन दे। So how do we know God? We know God also as a mother. तो हम परमेश्वर को कैसे जान सकते? एक माँ के रूप में। Secondly, दूसरी बात, God has care and compassion for us like a mother. और परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है, हम पर करुणा करता है जैसे माँ करती है। Especially in Isaiah chapter 49 and verse 14 and 15, if you would read. यदि हम वचन में फिर से जाएं, यशाया उसका 49 अध्याय उसकी 14 और 15 आए। And it says here about Zion or Jerusalem. Yes, anybody wants to read that? Roger? So again, God compares here himself with the mother, like a mother who cares and shows compassion. और यहाँ परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बताता है कि वो एक माँ की तरह है जो ध्यान रखती है और अपने बच्चों पर करुणा बरसाती है। It is improbable that a mother who gives birth to a baby will forget her. और ये बहुत ही नामुमकिन है कि एक माँ जिसने बच्चे को जन्म दिया वो उसको भूल But जाए। then he says, yes, it can happen. लेकिन परमेश्वर कहता है ऐसा हो सकता In है, fact, it does happen. और ऐसा होता भी है। In this world, especially these days, there are many mothers who do not like girls. So after birth, they just get rid of them. और अब हम इस दुनिया में देखते हैं कि बहुत सी माताएं हैं जो बच्चे को जन्म देने के बाद उसको छोड़ देती हैं। But God says, पर परमेश्वर कहता I है, love you so much मैं तुमको कितना प्यार करता हूँ, that I have so much compassion on you, मुझे तुम पर कितना प्यार आता है, like a mother. एक माँ की तरह। Even though they may forget their own born children, चाहे वो अपने पैदा किए हुए बच्चे को छोड़ दें, yet I will not forget you. वो तो भूल सकती है परंतु मैं तुझे नहीं भूल As सकता। fathers sometimes, who contribute to the giving of a birth of a baby and then they leave home, they leave the woman alone. God says, I am not like them ever. और परमेश्वर हमको सिखाना चाहता, मैं उन पुरुषों की तरह नहीं हूँ, उन पिता लोगों की तरह नहीं हूँ जो मदद तो करते हैं उस बच्चे के जन्माने के रूप में, लेकिन उसका साथ नहीं देते। But I am like a mother, I will never forget you. I will have compassion on you. पर मैं एक माँ की तरह हूँ जो मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा, ना त्यागूंगा, ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। This illustrates God's love for us. और ये जो है परमेश्वर के प्यार को हमारे लिए दर्शाता है। Unending love of God. कभी ना खत्म होने वाला परमेश्वर का प्यार। Unlimited care and compassion of a mother is portrayed in God. और बिना थकने वाला, बिना कंडीशन के, बिना शर्त का प्यार परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है एक माँ के द्वारा। What does it tell us these days, my dear friends? और ये हमें इन दिनों में क्या दिखाता है मेरे When the मित्रों? world is going through fear and panic and pandemic, और इस समय जब दुनिया इस महामारी के बीच में, डर के बीच में, अंधकार के बीच में when it निकल रही है, seems like God has forgotten us, जब ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमें भूल गया, when God doesn't seem to care, जब ऐसा लगता है परमेश्वर हमारा ध्यान नहीं रख रहा, God reminds us once again, परमेश्वर हमें आज याद दिलाना He चाहता is है like a mother. वो एक माँ की तरह है। Even though we may have sinned, चाहे हमने पाप क्यों ना किए हों, we may have done anything wrong, but He continues to show His care and His love toward us. और हमने कोई भी गलती क्यों ना की हो, लेकिन परमेश्वर लगातार हमसे प्यार करता जाता है और हमें दिखाता है कि वो हमसे प्यार करता है। God, when sometimes children rebel, और
कभी-कभी जब बच्चे विरोध करते हैं and they leave home, और वो घर छोड़ देते हैं, they don't want to live with their parents, वो नहीं चाहते कि वो अपने माता-पिता के they साथ don't रहें, want to live under the authority, वो नहीं चाहते कि वो अधिकार के बीच में रहें, they don't want to listen and obey. वो नहीं चाहते कि वो सुने और आज्ञा माने, Some fall into drugs and so many other wiles of this world. और कुछ जो है वो गलत आदतों में पड़ जाते हैं इस दुनिया में। Do you think the mothers forget about them and mothers don't care for them and mothers don't pray for them? तो आपको क्या लगता है कि उनकी माताएं उन्हें भूल जाती हैं या उन पर ध्यान नहीं रखती या उनके लिए प्रार्थना नहीं No, करती? my dear friends, that is never the case. मेरे मित्र, ऐसा कभी नहीं होता। Last year I was in San Diego. और पिछले साल मैं सैन डिएगो में था, And after our conference was over, I was invited by a local family and they hosted me for a day until my flight the next morning. और कॉन्फ्रेंस के बाद मैं एक परिवार के द्वारा मुझको रखा गया जब तक मुझे फ्लाइट पकड़नी So थी this नेक्स्ट दिन। beautiful family, and they had only one girl and she was also working. और इस सुंदर परिवार के बीच में मैं एक दिन था, उस पे एक लड़की थी, वो भी काम कर रही थी। And after getting to know this family in just a couple of hours, I knew their pain. और जब मैं कुछ घंटे ही उनके परिवार से जुड़ा था तो मैं उनके कुछ दर्द को महसूस कर रहा था। I thought they had only one child, a girl. और मैंने सोचा था कि शायद उनके पास केवल एक ही बेटी है। But then soon the mother was sobbing and she was telling her story and asking me to pray for her son. लेकिन आगे चलकर उसने मुझे वो माँ बहुत रोने लगी, सिसक कर रोने लगी और वो मुझे अपने बेटे के बारे में भी बताने लगी। A young, beautiful, bright young man. और ये बहुत ही सुंदर नवयुवक था। And he fell into drugs. और वो ड्रग के उसमें आदत में He पड़ fell गया into bad company. और गलत संगति में चला गया। And when he would not listen to the authority of the parents, he left home. और जब वो माता पिता के अधिकार में रहना उसको अच्छा नहीं लगा तो वो घर छोड़ कर चला गया। Stole money and jewelry from home. उसने घर से पैसा हीरे जवाहरात And now चुरा लिया he was living on the streets in the same city. और उसी शहर में वो सड़क पर रह रहा था। But her mother would cry every day and pray for her son to return home. पर उसकी माँ हर दिन रो रो कर उसके लिए प्रार्थना करती कि वो किसी तरह घर आ जाए। That is the heart of a mother. और ये एक माँ का हृदय है। The father in that family, he wouldn't care. He didn't share anything with me. और जो उस घर में पिता थे वो उनको ज़्यादा ध्यान भी नहीं था, उसने कुछ बोला भी नहीं मुझसे। Probably for him it didn't matter. हो सकता है उनके लिए कोई मतलब नहीं था। But mother keeps requesting me, please, pastor, pray for my son that he would return home. पर वो जो माँ थी वो बार बार प्रार्थना कर रही थी, रो रही थी और मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं निरंतर उसके लिए प्रार्थना करूं। And the day I know for sure that the day this gentleman decides to come home, और मुझे मालूम है कि जिस दिन वो उनका बेटा घर आने के लिए तैयार हो with जाता a है, motherly, compassionate heart, she will hug him, she will provide everything for him, and she will forgive him. और मुझे मालूम है जिस दिन वो घर आ जाएगा तो उसकी माँ सब कुछ भूलकर अपने प्यार के साथ, तरस के साथ उसको माफ करके अपने गले लगा देगी। This is what God is reminding us today, my dear friends. और यही जो है परमेश्वर हमें आज याद दिला Even रहा though है। God may seem distant, हो सकता है हमें परमेश्वर बहुत दूर नजर आए, but He is loving, लेकिन वो प्रेमी He है, is caring, वो ध्यान रखने He is वाला है, compassionate, वो तरस खाने वाला and है। He has promised और उसने हमसे वायदा that किया He है will not leave us nor forget us. कि वो हमें ना कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा। And another verse that shows us this compassion and care of God, और जो दूसरी बात हमें सिखाती है परमेश्वर के प्यार के बारे में, like a mother, एक माँ की तरह, is in Matthew chapter 23 and verse 37. Jesus said, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 37 आयत में इस प्रकार लिखा anybody है। wants to read Matthew chapter 23 and verse 37? मत्ती 23 और 37। Okay, so there is a simile here. How I have longed to gather you under my wings like a hen. और वचन में लिखा है, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे भी मैं तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं। And if you see this verse in the context that Jesus was speaking,
और यदि आप देखें कि किस संदर्भ में यीशु इस बात को कह रहे हैं, he was rebuking the Pharisees, वो फरीसियों को डांट रहे थे, the Sadducees, and all the law experts and all the Jewish religious leaders, and he was calling them names and he was telling it like it is. और प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को जो धर्म के ठेकेदार थे और सदूकी लोग थे, उन सबको बोल रहे थे ये किस तरह से है। But then he comes along and he says, still, God's heart, my God's heart, is like a hen who wants to gather you like chicks under its wings. लेकिन प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि ये उस तरह का हृदय परमेश्वर का हृदय है, एक माँ की तरह, जैसे वो मुर्गी की तरह अपने छोटे बच्चों को अपने पंख में समेट लेती And है। I read it somewhere. और मैंने कहीं पे ऐसा पढ़ा, This analogy that Jesus uses actually is very powerful. और मैंने पढ़ा था कि ये जो जिस संदर्भ में ये बात कर रहे हैं ये बहुत ही शक्तिशाली है। The hen, which is the analogy for mother here, और ये जो एक मुर्गी है, एक माँ की तरह है, when she is hatching these eggs, she loses weight and that describes the sacrifice a mother makes and the self-denial that a mother goes through. और ये जब अंडे में से बच्चे निकलते हैं, उस समय में जो मुर्गी है वो अपने स्वास्थ्य में कमज़ोर हो जाती है, और ये एक सैक्रिफाइस को हमें दर्शाता है। Because she has to sit on those eggs for a long period of about 21 days. और क्योंकि उस मुर्गी को उन अंडों के ऊपर बैठकर उनको सहना पड़ता है 21 दिन के लिए, She doesn't eat much. वो ज़्यादा खाती नहीं, She has to lose weight. उसको अपना वजन घटाना So पड़ता she है। has to be sacrificial and self-denying while bringing them into this world. उसको काफ़ी बलिदान करना पड़ता है इन छोटे चूज़ों के लिए जो आने वाले हैं। So God also says here, इसलिए परमेश्वर यहाँ कहता है, I have been sacrificial, I'm self-denying, I'm restraining myself. परमेश्वर कहता है कि यहाँ मैं अपने आप को बलिदान कर रहा हूँ। And there is another quality of a hen. और एक बहुत ही सुंदर चरित्र और है मुर्गी का, She can hatch any other eggs from another hen. वो दूसरी मुर्गी के बच्चे को Even though Can. yes, she can. She can recognize her own eggs as well as if you put other eggs under it. She doesn't discriminate. She is generous and she will hatch them too. और इसका बहुत ही अच्छा स्वभाव मुर्गी का ये होता है कि वो अपने अंडों को तो पहचानती है, लेकिन दूसरी मुर्गी के अंडों को भी पहचानती है और वो उनका भी ध्यान रखना नहीं भूलती। God, like a mother, और परमेश्वर जो एक माँ की तरह is है, indiscriminate. वो भी किसी का भेदभाव नहीं He is करता, so generous वो बहुत ही दानी है, and he reaches out to everybody and he welcomes everybody in his kingdom. वो हर एक के पास हर एक को ग्रहण करने के लिए अपने राज्य में लाने के लिए तैयार होता है। And the hen has to hatch these eggs for 21 long days. और उस मुर्गी को उन अंडों के ऊपर कम से कम 21 लंबे दिनों के लिए बैठना पड़ता है। Not all eggs actually produce chicks, और सारे अंडे जो हैं उसमें से मुर्गी के बच्चे नहीं but निकलते, she still continues to lay more eggs. लेकिन वो फिर भी जारी रखती है और अंडे देने के It लिए। shows her faith and it shows her hope. वो उसके विश्वास को, उसकी आशा को दिखाती है। Even some eggs have gone bad. चाहे दूसरे अंडे खराब निकले, She continues to hatch the other eggs and after that she continues to lay eggs. और वो उन अंडे को सहना नहीं भूलती, और लेकिन वो और भी ज्यादा अंडे देती रहती है। While she is sitting on those eggs, और जिस समय वो उन अंडों को सह रही होती है, she can understand and she can discern some of them are not unfertilized. और तब Some of them are unfertilized eggs. और जब वो उन पर बैठती है तो वो महसूस कर सकती है कि उसमें से कुछ अंडे ऐसे हैं जिनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। She rolls them out. वो उनको अलग भी कर She देती is है। sensitive. वो बहुत ही इस बात को She जानती है, is discernible. वो परख सकती And है, she easily does that without much malice. और वो आराम से उनको अलग कर देती है बिना कुछ दोष लगाए। So she abandons the rotten eggs वो खराब अंडों को अलग कर देती है, and she starts taking care of the hatched chicks, even if it is only one chick out of all the eggs that she has been hatching. और जितने अंडों के ऊपर वो बैठी है, जो सही अंडे हैं उनके ऊपर वो
बच्चे निकलने के बाद वो उन पर ध्यान रखती है, चाहे उसमें से केवल एक ही निकले। And once these chicks come out, और जब ये चूजे बाहर आ जाते हैं oh my goodness, no one can touch them. तो उन बच्चों को कोई भी छू नहीं सकता। You should watch, actually, observe how she protects her chicks from dangers, from dogs, from cats, from other animals, from eagles and from crows. तब आपको ध्यान, ये बहुत दिलचस्प बात है कि आप इस मुर्गी के छोटे बच्चों को कोई छू नहीं सकता, कोई जानवर उसको नहीं कर सकता, कोई इसके नजदीक नहीं आ She has सकता। a protective love to all her chicks. वो संभालने वाला प्यार, उनको प्रोटेक्ट करने वाला प्यार चारों Jesus तरफ होता says है। God has this protective love for his children, my dear friends. परमेश्वर कहता है उसके पास एक माँ की तरह प्रोटेक्टिव प्यार है। And then finally, और आखिर में हम देखेंगे she does not abandon her chicks until they become mature. और जब तक ये छोटे बच्चे परिपक्व नहीं हो जाते तब तक वो उनको छोड़ती नहीं। Shows the love and care and compassion as well as the mentorship. और वो उनके ऊपर तरस खाती है, उनको ध्यान करती है, उनको सिखाती है। So God gathers his children like a mother, और परमेश्वर इसी तरीके से अपने बच्चों को संभालता है एक माँ की तरह। How do we know God's love? हम परमेश्वर के प्यार को कैसे We जानते know हैं? God's love only through our mothers. हम परमेश्वर के प्यार को केवल अपने माँ की तरह ही जान If सकते हैं। mothers could be so loving and compassionate, यदि माएँ जो है इतनी प्यारी हो जाए, इतने तरस खाने वाले हो जाए, imagine how much more is God's love, who is more than a mother to us. तो आप उसको कल्पना कर सकते हैं कि उससे भी बढ़कर प्यार परमेश्वर का हमारे Hallelujah. लिए। So go Hallelujah। out today with the assurance from God's word इसलिए आप यहाँ से जब जाते हैं तो परमेश्वर के उस अनुभव को लेकर, उस आश्वासन को लेकर यहाँ से that जाएं God loves you so much more than you can ever comprehend. कि परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। And finally, और आखिर में God loves to comfort us like a mother. और परमेश्वर हमको सांत्वना देना चाहता है एक माँ की तरह। In Isaiah chapter 66 and verses 12 to 13, यदि हम वचन में फिर से जाएं, यशाया उसका 66 अध्याय, yeah, chapter 66 and 12 to 13. Anybody wants to read that? All right, so Jerusalem or Israel, the people of God, were going through some troubled times. और कुछ परेशानी के समय से निकल रहे थे इस्राएल के लोग। And now God comes along through prophet Isaiah with words of comfort and encouragement to them. और अब परमेश्वर यशाया भविष्यवक्ता के साथ वचन लेकर आता है उनको सांत्वना देने के लिए। And how does he do that? और वो कैसे करता He है? uses the imagery of mother. तो वो एक तस्वीर लाते हैं एक माँ की। And he says, I will nurse you like a baby, a mother nurses her baby. मैं तुम्हारा उस तरह से ध्यान रखूंगा जैसे एक माँ ध्यान रखती है, I will carry you on my hips. और मैं तुमको अपनी गोद में उठाऊंगा, And you will dandle on my knees. और तुम मेरे घुटनों पर कूदोगे। And as a mother comforts her child, और जैसे माँ अपने बच्चे को शांति so देती will है, I comfort you, and you shall be comforted in Jerusalem. वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा ताकि तुम यरूशलेम में शांति पाओ। As you read that verse, what comes to your mind? जब आप इस आयत को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? If you are a mother, you probably think of your own child who you have nursed and who has played in your lap and whom you have carried. तो यदि आप माँ हैं तो आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि आपने अपने बच्चे को कैसे उठाया और आपने कैसे उसको तसल्ली दी। Or maybe you remember those times when she or he, your child, was learning to walk. और यदि फिर आप याद करें कि जब आपका बच्चा चलना सीख रहा था And they fall often. और वो कई बार गिरते And they hurt themselves. और उनको चोट लग जाती, And more than the child, actually you cry out. और बच्चे से ज्यादा शायद माँ ज्यादा रोती है। And then you comfort them, you lay your hands and your kisses on their boo-boo. And then you say, okay, there is nothing wrong with it. It's okay. It's gonna be all right. और तब जब वो बच्चा रो के आता है तो आप उसके चोट पर आप मलहम लगाते हैं, आप उसको प्यार करते हैं, बोलते हैं सब कुछ ठीक हो And जाएगा, suddenly that boo-boo is gone. और वो चोट जो है वो खत्म हो जाती है। Whatever pain was there is gone. वो जो भी दर्द था वो चला जाता है। I remember when our daughter was little, मुझे याद है जब हमारी बेटी छोटी थी and we were in Allahabad in a seminary. I was teaching in a seminary in Allahabad.
और हम इलाहाबाद में थे और मैं शिक्षा दे रहा था सेमिनरी में। We had a very beautiful house on the campus, and it was a house surrounded by lots of fields around, and guava trees, mango trees, and lots of planting to do. और एक बहुत सुंदर कैंपस में एक बहुत सुंदर घर था, उसके चारों तरफ बहुत बाग बगीचे थे, अमरूद थे। And just outside our veranda, और बरामदे के बाहर there was a cement bench, और a concrete bench. एक कंक्रीट बेंच थी। And we had a lady, or a young girl, who was taking care of a little daughter. और हमारी छोटी बेटी को एक जवान लड़की ध्यान रख रही थी। And I was also sitting there, but as it always is the case, I was busy in my newspaper reading. और मैं भी वहाँ पास में था और मैं अखबार पढ़ रहा था। And this helper had put our daughter on that concrete bench. और इस लड़की ने हमारी बेटी को उस बेंच के ऊपर बैठा दिया। And this little beautiful girl decided to crawl on the bench. और ये जो सुंदर बेटी थी, इसने निर्णय लिया कि उसके ऊपर चले। And before you realized it, she was out on the ground. I mean, she just jumped or slipped or something, and she began to cry like anything. और ये जो बेटी थी हमारी छोटी, ये उससे नीचे गिर गई और रोने लगी। And she was okay. She understood as soon as she heard the voice of her mother. और वो ठीक थी, उसने अपनी माँ की आवाज़ को सुना। But now another howling began. पर अब दूसरा शोर शुरू हुआ। That was her mother. और वो उसकी माँ थी। And she was crying because she saw something that we couldn't see. Oh, my daughter, she fell. How did you let her fall? And all those kinds of things. और उसकी माँ को बहुत दर्द हुआ उसको देखकर, और जो किसी को नहीं दिख रहा था वो माँ को दिख गया और वो गुस्सा करने लगी कि ध्यान क्यों नहीं रखा। So our helper, और इसलिए मैं मदद करता। she made this statement to me. और उसने मुझसे ऐसा बोला, Sir, you take care of your wife and I will take care of the daughter. Don't worry, I'll take care of the daughter. She is okay, but you take care of her mother. तो जो लड़की हमारी बेटी का ध्यान रखती थी, जब उसने उसकी माँ को देखा तो बोला कि आप अपनी पत्नी को देखें, इसकी मम्मी को देखें, और बेटी को मैं देख लूँगी। That's a mother. Jesus says, God says, the word of God says, God is like that. परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए एक माँ की तरह He है। cries when we hurt. जब हम दुखी होते हैं तो परमेश्वर भी हमारे साथ रोता है। And he has compassion of a mother. उसके पास माँ का तरस है। She loves to nurse us. She loves to nurture us. He loves to provide for us. और परमेश्वर हमारी देखभाल करता, हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। He even wants to carry us in his arms if we are hurt. और जब हमें दर्द होता है तो वो हमें अपनी गोद में उठा लेता है। And he says, I will comfort you. और परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा। My dear friends, those who are listening to this message, maybe you lost your mother this year. मेरे मित्र, हो सकता है जो आप लोग सुन रहे हो, आप में से किसी ने अपनी माँ को खो दिया। I want to assure you that God knows your pain, and more than anybody else, He is hurt and He wants to comfort you with His own arms. और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमको तसल्ली देता है और परमेश्वर हमारे साथ दुखी होता है। This scripture wants you to have this picture of God in your minds. और ये जो पवित्र शास्त्र में इस समय लिखा हुआ है, ये हमको एक तस्वीर देना चाहता है एक माँ की। That is of a nursing mother. ये एक माँ जो बच्चे का ध्यान That रखती is है। of a kind, compassionate mother who is willing to comfort you when you fall down. और ये उस तरह की माँ है जो बहुत ही तरस खाती है और तैयार होती है आपको उठाने के लिए जब आप गिरते हो। And even if you didn't have a mother, और यदि आपके पास माँ भी नहीं है, and you were never comforted by a mother's love, और यदि आपको कभी माँ के प्यार की तसल्ली नहीं you मिली, can still find that comfort and love in God when you completely trust Him. तो आप वैसा प्यार परमेश्वर में पा सकते हैं, माँ जैसा प्यार, यदि आप उस पर पूरा भरोसा करें। Even those thousands and millions of people who are suffering today, और आज भी जो करोड़ों लोग
परेशान हैं, God wants to wrap His hands, compassionate hands, around you and embrace you and say, "My child, I love you and I want you to have the comfort that God is there for you." और तमाम लोग जो इस समय परेशान है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तैयार हूँ तुमको अपनी बाहों में लेकर तसल्ली देने के लिए। This is the kind of God, the motherly God that we have. Hallelujah. ये वो परमेश्वर की तस्वीर है, वो परमेश्वर है जो हमें अपनी माता की A तरह प्यार God करता who है। loves to comfort His children like a mother does her children. वो परमेश्वर ऐसा है जो एक माँ की तरह अपने बच्चों को तसल्ली देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। So may we go out today with this assurance that God calls herself a mother and He loves her and comforts her like a mother. तो आइए आज हम इस आश्वासन के साथ यहाँ से जाएं कि परमेश्वर हमें एक माँ की तरह प्यार करना चाहता Let है। us pray. आइए प्रार्थना करें।